علامہ خالد محمود صاحب. جی بابی میں بات کرواتا ہوں حضرت. جی یہ حضرت بات کریں جی. جی ذرا تھوڑا سا اونچی بولے نا, سماعت کا تھوڑا سا ہے حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک منٹ جی, ایک منٹ آپ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا معاشر المسلمین, جزاکم اللہ خیرا. جزاکم اللہ خیرا. آمین. معزز خواتین و حضرات, ایک اور ہماری خوش قسمتی عالم اسلام کا ایک بہت ہی عظیم نام علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب, ڈائریکٹر اسلامک اکیڈمی مانچسٹر لندن. اگر میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ میسج ٹی وی جو آج اللہ کے فضل و کرم سے اور پھر آپ سب کی دعاؤں سے آن ایئر ہوا ہے اور حج ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا ہے, اس میں در حقیقت جو ترغیب ہے اور اس کے پس منظر میں جو خواب ہے جو آج پورا ہوا ہے وہ علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا ہے. حضرت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی حضرت. اور کوئی بات بھی کر دیں, میں اگر فلوئنٹلی نہ کریں پھر میں سن لیتا ہوں, اگر فلوئنٹلی کریں تو بعض اوقات ایکسنٹ کا فرق مجھے سننے میں اور دقت پیش کرتا ہے. کوئی بات نہیں حضرت, آپ فرمائیں آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں. آپ کے سامنے ہے سارا پس منظر, علماء حق, اہل دین, زمانہ بلکہ یوں کہوں کہ مدتوں انتظار میں رہے, آج اللہ نے وہ خواب پورا فرمایا. اللہ ہمیشہ عافیت سے, ہمیشہ آپ کے لیے ہمارے لیے اسے صدقہ جاریہ کی صورت میں قبول فرمائے اور خوب ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے. عالم اسلام کے لیے, میسج ٹی وی کے حوالے سے, پاکستان کے لیے, حج کے حوالے سے, حجاج کے حوالے سے آپ جو پیغام دینا چاہیں ارشاد فرمائیے. الحمدللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, آپ میسج کے عنوان سے تو نہ واقف نہیں, اسی نے آج ہمیں اس تاریخی موقع پر اپنے بھائیوں کے ساتھ, خاص طور پر جو وطن سے مجھ سے اس وقت بہت دور ہیں, بات کرنے کا موقع عطا فرمایا. میں تہہ دل سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میسج کا یہ عنوان یونٹی امنگ دا کمیونٹی, حقیقت کے طور پر تو یہ میسج کی آواز ہے, اور واقعاتی طور پر اس کا یہ جو آج ہماری یونٹی ہے کہ تمام دنیا سے جمع ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ گھر میں, اور حج کی تقریب بالکل سامنے, عید قربان کی تقریب بالکل سامنے. تو یہ واقعاتی تصدیق ہے کہ واقعاتی طور پر یونٹی کمیونٹی کب ہے؟ اس حج کے موقع پر. اور واقعی طور پر یہ ہے سب کے لیے پورے سال کا نظام کہ ہم آپس میں مل کر رہے ہیں, اس میں ہمیں بہت خوشی ہے. اور ہم اس پر اپنے اس عقیدے کو اپنے بھائیوں کے سامنے اگر پیش کریں تو نامناسب نہ ہوگا کہ ہماری ساری باتیں ساری دنیا میں ہو رہی ہیں, لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو صرف ایک ہی جگہ پر ہوتی ہے اور دوسری جگہ پر نہیں. اور وہ کہاں ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حرم پاک میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عرفات کو یہ حاضری نصیب فرمائی ہے وہ اسی میں ہو سکتی ہے, یعنی اور کسی جگہ نہیں. دنیا میں نمازیں ہر جگہ ہیں, روزے بھی ہر جگہ رکھے جا رہے ہیں, زکوٰۃ اور غریبوں کی امداد یہ بھی ہر جگہ ہے, لیکن حج کا جو عملی نمونہ ہے کہ ہم ایک جگہ پر جمع ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہیں رکھا. اس سے پتہ چلا ہمیں اس زمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس وقت
सऊदी अरब के ज़ेरे इंतज़ाम वो खिता पाक भी है कि इस्लाम में एक इबादत ऐसी है जो उस जगह के सिवा और कहीं होती ही नहीं। बाकी सब इबादतें सारी जगह हो सकती हैं, लेकिन ये इबादत उस एक जगह के सिवा और कहीं होती ही नहीं। इससे हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इस खित्ते पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का वो साया है कि इसमें दुनिया के आखिर में दज्जाल जो सारी दुनिया में जाएगा और घूमेगा और हर जगह वो फितना फसाद फैलाएगा, लेकिन उसको दाखिला इस अर्ज़ पाक में नसीब नहीं होगा। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। और अगर हम वाकई दिल से ये मानते हैं कि यूनिटी अमंग द कम्युनिटी ये वाकयाती तौर पर हमारे सामने आए, तो आज का मंजर आपके सामने है कि जब हर 3 मिनट के बाद एक जहाज वहां उतर रहा है और अभी खाना काबा के प्यासे और तवाफ करने वाले, तवाफ की तलाश करने वाले जब हरम के सामने आते ही ये सदा लगाते हैं, कोई ऐसी तर्ज तवाफ तू मुझे हमें सर बता, कोई ऐसी तर्ज तवाफ तू मुझे सर बता कि तेरे पतलांग को फिर अतला हो वही सही से समंदरी। जो लोग एक दफा हाजी कर भी आए फिर भी एक ऐसी तरफ वो बताती है, कोई ऐसी तर्ज तवाफ तू मुझे चिरागे हरम बता। इन सदाओं के साथ मैं आप हजरात को इस तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ कि खाना काबा के बारे में, उस अर्ज़ हरम के बारे में ये अकीदा कि वो ममलकत, वो सल्तनत, वो सरजमी ऐसी नहीं जैसी दुनिया में और हर इस्लामी मुल्क में, हर इस्लामी मुल्क की फजा है। लेकिन इसको अल्लाह ताला जो शर्फ अता फरमाया वो वहीं का है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास, कि अल्लाह तबारक व तआला ने निशान बनाया है काबा बैतुल हराम को दुनिया की बका का, कि दुनिया की बका कब तक है, क़ियामल लिन्नास कब तक है, जब तक ये काबा है। ये काबा है, दुनिया है। जब ये बात ना रहेगी तो फिर दुनिया भी ना रहेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानु हमें आज एक दूसरे को, अपने भाइयों को मुबारक कहने की तौफीक अता फरमाए। और ये कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक उसी सरजमीन में हुए, लेकिन आपने अपनी सल्तनत के, अपनी दावत के, अपनी रिसालत के जो दायरे बताए, तो फरमा रहा तो मशार कहा व मगारिबा, कि उसके मशरक और मगरब तक उनके असरात पहुंचे। तो जिस पैगम्बर की सजा मशरक और मगरब में पहुंचनी मौजूद रहा तो मशार कहा व मगारिबा है, इस दर्जे में मौजूद है। आज ये मैसेज के जरिए से कि मैसेज, ये पैगाम या यूनिटी अमंग द कम्युनिटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसका एक इफ्तिताह कर रहे हैं। इस इफ्तिताह में दुआ है कि या अल्लाह, जिस तरह तूने इस पैगंबर को अपनी बात कहने के लिए मशरक और मगरब तक पहुंचाया, उसकी नजरें, उसकी दुआएं, उसकी तवज्जुहात सारी उस तक पहुंची कि आपने कहा कि मैंने दुनिया के मशरक और मगारिब को देखा है, वो मेरी रिसालत की तमाम दुनिया में वो फैलेगा। आज उस फैलाव का शर्फ, उस फैलाव की इज्जत किसको हासिल हो रही है? मैसेज टीवी को। मैसेज टीवी ये जब कहता है कि यूनिटी अमंग द कम्युनिटी, तो कोई पूछे कि इसका अमली नमूना क्या है, तो हम कहते हैं कि आज की हाजिरी देख लो, आज की हाजिरी देख लो। और इसमें अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर जब सब हाजिरी दे रहे हैं तो ये अदा में दे रहे हैं कि छोटे बड़े का कोई इम्तियाज नहीं। इंसान दुनिया में, अपनी सोसाइटी में दूसरों के सामने फख्र महसूस करता है ज्यादा तौर पर, खुशी महसूस करता है ज्यादा तौर पर, इज्जत महसूस करता है ज्यादा तौर पर लिबास से। लेकिन अल्लाह ताला के हुजूर ये हाजिरी ऐसी है कि सब लिबास में एक ही हैं,
एहराम बांधे हुए हैं, जिसमें सब अमीरों गरीब, बादशाह फकीर सब एक जैसे लिबास में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो यूनिटी क्या है, क्या हर मुल्क आने वाला इसी लिबास में, तो ये हमें इस बात की याद दिला रहा है कि यूनिटी कम्युनिटी का क्या मुकाम है। और जिस मैसेज के जरिए आज हम ये फैसला कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इसको आबाद रखे, इसको आबाद रखे, और इसको जब तक ये दुनिया कायम है उस वक्त तक कायम रखे, और अल्लाह तबारक व तआला उस घर को और ज्यादा इज्जत अता फरमाए। और जो कोई शख्स, जो कोई सल्तनत, जो कोई इलाका सऊदी अरब की तरफ बुरी नजर से देखे, तो या अल्लाह उसको अपनी तमन्नाओं में नाकाम फरमा। जिस तरह तूने इस घर का बहुत बोला किया, जिस तरह तूने इस घर को बुलंद किया, उसको सर बुलंद किया, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा वहीं किया और वो वहीं के थे, लेकिन आपकी नजरें पूरे मशारिक और मगारिब को हावी हैं। या अल्लाह ऐसी सारी कम्युनिटी को अता फरमा। मैं इन दुआओं के साथ आप हजरात के साथ शरीक हूँ। दुआ करनी हमारी एक आजिज़ाना सदा है, आजिज़ाना सदा है, और आजिज़ाना सदा करने वाले तो कई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे ताला कबूल कर ले तो फिर हमें आज जो इज्जत हमें आप हजरात ने इतनी दूर से बात सुनने की अता फरमाई, इस पर मैं तहे दिल से अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। आमीन। हजरत अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। आपकी हमेशा से तवज्जुहात, तौजीहात, आपके इरशादात हमारे लिए काबिल अमल हैं, नमूना हैं। आप हकीकत में हमारे असलाफ का नमूना हैं, सरमाया हैं आलम इस्लाम का। अल्लाह बहुत सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लामा साहब बहुत खूबसूरती से हज के हवाले से, हरमैन शरीफैन के हवाले से और मैसेज टीवी के लिए और उसके सामीन और नाजरीन के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार फरमा रहे थे। इंशाअल्लाह एक ब्रेक के बाद दोबारा